Hello everyone, welcome back to Law Prep tutorial. Today we will be dealing with the part second as to how to identify legal principle that is given in the passage. So identifying legal principle is very easy and at the same time it is very important because everything depends upon as to how you are able to correctly identify the legal principle in less amount of time. So let's get into it. The passage deals with family law. A Hindu marriage is not an event for song and dance, whining and dining, or a commercial transaction. The Supreme Court has observed and said it cannot be recognized in the absence of a valid ceremony under the Hindu Marriage Act. So, in this first paragraph, there is no legal principle. See, there is no legal principle. Okay. Second says, because there is no law involved in it, just the Supreme Court is saying that Hindu marriage is not a song and dance or whining or dining commercial transaction, it is a sacrament. Okay. Coming to the next paragraph. Next paragraph says, a bench of Justice B.V. Nagaratna and Augustine George Massey said a Hindu marriage is a sanskara and sacrament which has to be accorded its status as an institution of great value in the Indian society. So this is the observation of the judges, and according to them, the Hindu marriage is a samskara or a sacrament and not a commercial transaction. So this is the opinion that has been held by these justices, but there is again no legal principle in this. The next paragraph says, in its recent order in the matter of two trained commercial pilots who sought divorce decree without performing a valid Hindu marriage ceremony, the bench urged young men and women to think deeply about the institution of marriage even before they enter upon it and as to how sacred the said institution is in Indian society. So this is the observation that has been held by the court, and in it the judges are, or the justices are saying, they are the facts given here in this passage are there. Two pilots have married and they have married without following the requisite ceremonies that need to be followed for a valid Hindu marriage. So this is the these are the facts and these are the opinions of the justice that has been given. Okay, a marriage is not an event for song and dance and whining and dining or an occasion to demand and exchange dowry and gifts by undue pressure leading to possible initiation of criminal proceedings thereafter. A marriage is not a commercial transaction, it is a solemn foundational event celebrated so as to establish a relationship between a man and a woman who acquire the status of a husband and wife for evolving family in future, which is the basic unit of Indian society. Again, in this passage, the court is saying that marriage is the foundation for any family. It is the basic unit of our Indian society is family, and family is made through marriages. So marriage is very much sacred in the Indian society. Again, there is no legal principle as such in this passage, in this particular paragraph. Coming to the next paragraph, terming the marriage as sacred as it provides a lifelong, dignity affirming, equal, consensual and healthy union of two individuals. The bench said a Hindu marriage facilitates procreation, consolidates the unit of family and solidifies the spirit of fraternity within communities. So again, it is giving us the benefits of a marriage. That what are these all are the benefits of the marriage. It facilitates procreation, that is, children are brought forth in this world through marriages. Consolidates the unit of family. It is, since it is the basic unit of Indian society, so it consolidates the unit of family and solidifies the spirit of fraternity within various communities. As such, again, it is giving us the benefits of a marriage, but as such there is no legal principle till now. Next paragraph. We depreciate the practice of young men and women seeking to acquire the status of being husband and a wife to each other and therefore purportedly being married in the absence of a valid ceremony under the provisions of Hindu Marriage Act, such as in the instant case where the marriage between the parties was to take place later. Okay, so in this passage we have been given the facts. Okay, so there's a difference between facts and there's a difference between legal principles. When we are solving questions or passages of legal principles, we need to differentiate between facts and the legal principle. So this is fact, there is no legal principle in this case, in this paragraph. Next passage. In its April 19 order, the bench said there where a Hindu marriage is not performed in accordance with applicable rites or ceremonies, such as Saptapadi, taking 7 steps by the groom and bride jointly before the sacred fire, the marriage will not be considered as a Hindu marriage. This is our first legal principle, LP1, which says that without any religious ceremony or without any rituals, there will be no valid Hindu marriage. This has been given in this
particular passage. So this is our first legal principle. The legal principle is that कि अगर सेरेमनीज नहीं हुई है, अगर एक हिंदू मैरिज में सेरेमनीज नहीं हुई है तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी. दिस इज आवर फर्स्ट लीगल प्रिंसिपल. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज we further observe that a Hindu marriage is a sacrament and a sacred character in the context of Satpadi. Satpadi is सात फेरी लेना. In the context of Satpadi in a Hindu marriage, according to Rig Veda, after completing the seventh step, Satpadi, the bridegroom says to his bride, with this 7 steps we have become friends, Sakha. May I attend to friendship with thee. May I not be separated from thy friendship. A wife is considered to be half of oneself, Ardhangini, but to be accepted with an identity of her own and to be co-equal partner in the marriage itself. So this is giving the importance, this is emphasizing on the importance of marriage as per Rig Veda. Okay, again there is no legal principle here. In Hindu law, the marriage is a sacrament of sanskara and it is the foundation of a new family. The bench noted, there is nothing like a better half in the marriage, but the spouses are equal halves in a marriage. Observing that with the passage of centuries and enactment of the act, monogamy is the only legally approved relationship between husband and a wife. So this is my legal principle second. What is the legal principle here? The legal principle here is that only monogamy is allowed. Polygamy, polyandry, anything of such sort is not allowed. Only monogamy is permissible, or only monogamy is legal. The Hindu Marriage Act has categorically discarded polyandry and polygamy and all other such type of relations. The intent of Parliament is also that there should be only one form of marriage having varied rights and customs and rituals noted. Now, why I should not make it LP3 or legal principle 3? Because it is repeating the same principle that has been given in LP2. So LP2 said that only monogamy is the preferred mode, or only monogamy is the legally recognized form of marriage. So when only monogamy is the recognized form of marriage, then it is correct to say that polygamy or polyandry is not allowed. That's why I will not consider this line, the Hindu se lekar it noted tak, as legal principle 3, because it is the repetition of the same thing. Okay, so it is not legal principle 3. Till now we have noted 2 legal principles. Next, the bench said after the act came into force on May 18, 1955, it had codified the law relating to marriage among Hindus. It had codified the law relating to marriage among Hindus, and it compasses not only Hindus as such but Lingayats, Brahmos, Arya Samajists, Buddhists, Jains, Sikhs also who can enter into a valid Hindu marriage coming within the expansive connotation of the word Hindu. So this is my legal principle 3rd. ये लीगल प्रिंसिपल कैसे है कि लीगल प्रिंसिपल ये बता रखा है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है हिंदूज पे लगेगा, ठीक है, लेकिन इसमें लीगल प्रिंसिपल ये है कि हिंदूज में कौन कौन आएंगे. हिंदूज में जो हिंदूज है वो तो आएंगे, साथ ही साथ लिंगायत भी आएंगे, ब्रह्मोस भी आएंगे, आर्य समाजिस्ट भी आएंगे, बुद्धिस्ट भी आएंगे, जैन्स भी आएंगे और सिख्स भी आएंगे. तो इसमें लीगल प्रिंसिपल ये है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अगर एक सिख है या फिर एक जैन है उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हिंदू की डेफिनेशन में सिख्स और हिंदूज, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट ये सब जो है आते हैं फॉर द पर्पज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. दिस इज माई लीगल प्रिंसिपल 3rd. Unless the parties have undergone such ceremony, there would be no Hindu marriage according to Section 5 of Hindu Marriage Act, and a mere issuance of a certificate by an entity in the absence of requisite ceremonies having been performed would neither confirm any marital status to the parties nor establish a marriage under Hindu law. This is my legal principle 3. Legal principle 4. अब इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि अगर आपने सेरेमनीज के साथ शादी नहीं की है लेकिन आपने मैरिज को रजिस्टर करा लिया, आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन आपने सेरेमनीज के साथ शादी नहीं की, तो दैट मैरिज विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड, बिकॉज मैरिज विल बी कंसिडर्ड वैलिड only in the case when proper ceremonies have been followed. Just because you have a marriage certificate and you have not followed the proper ceremonies, that will not suffice for a valid marriage. Okay, so this is my legal principle 4. The top court highlighted that the advantage of marriage registration is that it facilitates proof of factum of wedding and in disputed case, but if there has been no marriage in accordance with section 7 of the act, the registration would not confer legitimacy to the marriage. So this is the repetition of the same. This is the repetition of legal principle 4. Legal principle 4 में भी ये कहा गया था कि अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है लेकिन आपने सेरेमनीज परफॉर्म नहीं किए, तो सिर्फ और सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट होने के कारण आपकी शादी वैलिड नहीं हो जाएगी. आपको जो है सेक्शन 7 की जो सेरेमनीज है,
जो सप्तपदी है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी मैरिज वैलिड होगी। अगर आपने सप्तपदी फॉलो करी है और भले ही आपने जो है मैरिज को रजिस्टर नहीं कराया, इवन इन दैट केस दैट मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। लेकिन आपने मैरिज को रजिस्टर करा लिया लेकिन सेरेमनीज नहीं की है, सप्तपदी नहीं की है, तो दैट मैरिज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड मैरिज। It noted that under the Special Marriage Act, a man and woman can acquire the status of being husband and wife as per the provisions of said act. अब कहीं को ये लग सकता है कि ये लाइन भी जो है लीगल प्रिंसिपल हो सकती है, लेकिन ये लीगल प्रिंसिपल नहीं होगी, क्योंकि मैरिज जो है दैट इज टिल नाउ रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन ओनली. Same sex marriages till now have not been recognized in India, so there is no legal principle in this particular line. Next, the Special Marriage Act 1955 is not restricted to Hindus. Any man or woman, irrespective of their race, caste or creed, can acquire the status of being a husband and wife under the provision of Special Marriage Act. So this is my legal principle 5. कि स्पेशल अगर किसी को भी इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस, इंटर क्रीड या फिर जो इंटर रेस मैरिज करनी है तो वो जो है कर सकते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट. तो स्पेशल मैरिज एक्ट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज बट it covers every caste, every religion, every race. Okay, this is my legal principle 5. But under the provisions of Hindu Marriage Act, there should not only be compliance with as conditions prescribed under Section 5 of the said Act, but also couple must solemnize the marriage in accordance with Section 7 of the Act. तो Section 7 of the Act अभी हमने देखा, Section 7 of the Act क्या कहता है कि religious ceremonies आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी शादी करते वक्त. तो आपने अगर शादी करते वक्त रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म नहीं की तो आपकी शादी वैलिड नहीं. तो इसलिए मैं इसको वापस अंडरलाइन नहीं करूंगा क्योंकि ये लीगल प्रिंसिपल मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है. ठीक है. Coming to the last question. Now, exercising its plenary powers under Article 142 of the Constitution, the Apex Court declared the estranged couple were not married in accordance with the law and held the marriage certificate issued to them in absence of valid ceremony under the Hindu Marriage Act as null and void. तो plenary powers कहाँ दे रखी है? Article 142. ये थोड़ा important point है. Not exactly legal point, but an important point. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. हमने लीगल प्रिंसिपल्स कितने आइडेंटिफाई किए? हमने लगभग 5 लीगल प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए. अगर आपने इससे ज़्यादा किए हैं तो आपने एक रिपीटेशन किया है. मतलब हमें जब हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो हमें लीगल प्रिंसिपल एक बार अगर हमने आइडेंटिफाई कर दिया उसी को वापस जो है अंडरलाइन नहीं करना, उसी को जो है मार्क नहीं करना है, क्योंकि दैट विल बी रिपीटेशन ऑफ द सेम लीगल प्रिंसिपल. ओके, सो दिस इज द ट्रिक और दिस इज द आर्ट एज टू हाउ यू रीड अ पर्टिकुलर पैसेज, how you identify the legal principle that have been given. You must differentiate between facts of the case and you must differentiate between the opinion that has been given by the courts and you must differentiate between the decision or between the law that the particular court has applied. So our job while solving a legal principle or legal reasoning passages is that we have to identify the law. We don't have to identify the opinion. Opinion is important. You must underline the opinion part. You must mark it as important. But that will not exactly let you score good marks in the legal reasoning. The important point here is that you must identify the important legal principle that has been given in the passage. Okay. A couple belonging to Hindu faith decides to have a civil ceremony officiated by a government official instead of adhering to traditional Hindu rites and ceremonies. Hindu rites और ceremonies follow नहीं किए. The exchange was in a courthouse without any involvement of the sacred fire or Saptapadi. Based on the passage, how would the court likely interpret the marital status of the couple? अब इस केस में इन्होंने सेरेमनीज फॉलो नहीं किए. अब सेरेमनीज फॉलो नहीं करते तो वो जो है मैरिज वॉइड मानी जाती है, मैरिज जो है वैलिड नहीं होती है. तो कौन सा लीगल प्रिंसिपल हम देखेंगे? इसमें लगेगा लीगल प्रिंसिपल 1. तो लीगल प्रिंसिपल, अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने अगर पैसेज एक बार पढ़ा है और एक बार ढंग से पढ़ा है और मैंने लीगल प्रिंसिपल ढंग से मार्क किए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना ढंग से और डायरेक्ट जो है पैसे में जाके लीगल प्रिंसिपल को जो है वहाँ पे जाके देखना है. जैसे ही देखूंगा मेरे आंसर जो है बहुत आराम से और जितने मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो सब जो है सही हो जाएंगे. सिंपल सा करना है बस, और कुछ नहीं करना है. तो अब इसमें लीगल प्रिंसिपल 1 लगता है. लीगल प्रिंसिपल 1 कहता है कि अगर आपने सेरेमनीज फॉलो नहीं की तो आपकी मैरिज वैलिड नहीं होगी. ठीक है, तो मैरिज वैलिड नहीं होगी तो वैलिड वाले तो काट दो, बचा एक जो कि बी है, वो बी करेक्ट है. तो कोर्ट वुड नॉट कंसिडर द मैरिज एज इट लाइक्स एडहेरेंस टू हिंदू राइट्स लाइक सप्तपदी. तो इनकी शादी वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सप्तपदी नहीं किया, रिलीजियस सेरेमनीज फॉलो नहीं किए. ये कोर्ट हाउस में जा रहे हैं और सिविल सेरेमनी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने कर रहे हैं, जो कि अभी हमने पैसेज में पढ़ा कि वो सिर्फ इस कारण जो है एक शादी वैलिड नहीं हुई. शादी वैलिड तब होगी जब आप रिलीजियस सेरेमनीज फॉलो करते हो. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, अ हिंदू मैन ऑलरेडी मैरिड अकॉर्डिंग टू द हिंदू राइट्स डिसाइडेड टू एंटर इनटू सेकंड मैरिज. एक बंदा उसकी शादी हो रखी है, decides to enter into a second marriage with
अनदर विदाउट लीगली डाइवोर्सिंग हिज फर्स्ट वाइफ। मतलब वो क्या कर रहा है, बाइगेमी कर रहा है। ही आर्ग्यूज दैट सिंस इज रिलीजन हिस्टोरिकली परमिटेड पॉलीगेमी, कि पहले हमारे यहाँ पे जो पॉलीगेमी होती थी, उसने ऐसा कहा सी शुड बी अलाउड टू प्रैक्टिस, पहले होती तो अभी भी होनी चाहिए, ये वो कह रहा है। बेस्ड ऑन द पैसेज हाउ वुड द कोर्ट लाइकली इंटरप्रेट द लीगलिटी ऑफ सेकंड मैरिज। अब इसमें लीगल प्रिंसिपल कौन सा लगेगा, जो मैंने मार्क किया अभी, इसमें लगेगा लीगल प्रिंसिपल 2। तो लीगल प्रिंसिपल 2 लगेगा। लीगल प्रिंसिपल 2 कहता है कि मोनोगेमी अलाउड है, बाइगेमी अलाउड नहीं है। कोर्ट वुड रिकॉग्नाइज सेकंड मैरिज इज वैलिड। सेकंड मैरिज वैलिड कैसे होगी, पॉलीगेमी हिस्टोरिकली अलाउड थी लेकिन अब अलाउड नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में अलाउड नहीं है, अब इनवैलिड। यहाँ पे बी कह रहा है द कोर्ट वुड डिक्लेयर द सेकंड मैरिज इनवैलिड एज द हिंदू मैरिज एक्ट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स पॉलीगेमी। ये बात सही है कि सिर्फ और सिर्फ मोनोगेमी अलाउड है, पॉलीगेमी और पॉलिएंड्री तो साफ साफ जो है बैंड है। ठीक है। सी कह रहा है द कोर्ट वुड रिकॉग्नाइज द सेकंड मैरिज एज वैलिड इफ द मैन ऑब्टेन्स। अगर आदमी अपनी पहली वाइफ की भी कंसेंट ले लेता है, फिर भी सेकंड वाइफ के साथ जो उसकी शादी वो वॉइड होगी, इसलिए ऑप्शन सी नहीं लेंगे। ऑप्शन डी कह रहा है द कोर्ट वुड कंसिडर द लीगलिटी ऑफ सेकंड मैरिज इररिलेवेंट एज लॉन्ग एज इट। ये वाली बात कह रहा है कि सेकंड मैरिज में अगर उसने रिलीजियस सेरेमनीज फॉलो की हैं तो वो सेकंड मैरिज भी वैलिड होगी। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि सेकंड मैरिज चाहे आप सेरेमनीज के साथ करो या बिना सेरेमनीज करो, सेकंड मैरिज इज अ वॉइड मैरिज इफ देयर इज अ लिविंग स्पाउस। ओके। Next question. A group of individuals belonging to a Hindu sect that historically practiced polyandry seeks legal recognition for their marital customs, arguing that it is a part of religious tradition. Based on the passage, how would the court likely respond to the request for legal recognition of polyandry? तो ये क्वेश्चन मिलता जुलता है पिछले वाले से, उसमें पॉलीगेमी की बात की गई थी, इसमें पॉलिएंड्री की बात की गई थी। तो लीगल प्रिंसिपल 2 अभी हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ मोनोगेमी अलाउड है, तो पॉलीगेमी और पॉलिएंड्री दोनों बैंड है, और अगर उनमें शादी की तो वो वॉइड होगी। द कोर्ट वुड ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन। लीगल रिकॉग्निशन कैसे देगा पॉलिएंड्री को, जब बता गया साफ साफ बैंड है। The court would reject the request for legal recognition as the Hindu marriage act explicitly discarded polyandry। ये वाली बात एकदम सही है, लीगल प्रिंसिपल 2 से हमें साफ साफ पता चलता है। ऑप्शन सी द कोर्ट वुड कंसिडर लीगल रिकॉग्निशन फॉर पॉलिएंड्री इफ इट इज प्रैक्टिस। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। स्पेसिफिक सेक्ट्स का पैसेज में कहीं बता ही नहीं रखा है कि अगर स्पेसिफिक सेक्ट्स और उनमें पॉलिएंड्री अलाउड है तो उनकी वैलिड मैरिज बन जाएगी। दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज। ऑप्शन डी द कोर्ट वुड अलाउ पॉलिएंड्री अंडर सर्टेन कंडीशंस। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग कि आप जो है दोनों पार्टी से अगर परमिशन लेते हो तो पॉलिएंड्री अलाउड होगी, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है पैराग्राफ में, और पॉलिएंड्री स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सिख मैन हैज मैरिड नेम्ड एस फ्रॉम सेम रिलीजन ऑन 23rd April 1990 and has happily lived with her for 5 years. Some differences arise between them and now A wishes to marry Z. उनके बीच में कोई लड़ाई हुई है और अब ए क्या चाहता है कि ए जो है Z से शादी करे। पहले किससे शादी कर रखी है उसने, एस से। अब ए किससे शादी कर रहा है, जेड से, बिना एक एस को डाइवोर्स दिए हुए, मतलब इससे दूसरी शादी कर रहा है जब उसकी पहली वाइफ लिविंग है और उसको डाइवोर्स नहीं दिया। बिलोंगिंग टू सिखिज्म एंड अकॉर्डिंग टू मैरिज ऑन हर ऑन 1 November 2000 वुड द कोर्ट लाइकली रिकॉग्नाइज एज मैरिज विथ जेड वुमेन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये शादी कर रहा है सेकंड जब उसकी पहले से एक लिविंग स्पाउस है। तो अभी हमने देखा कि पॉलीगैमी जो है वो बैंड है, दैट इज नॉट अलाउड, ओनली मोनोगैमी इज अलाउड। और क्योंकि ये सिख है तो सिख के लिए अभी हमने देखा है कौन सा जो है लीगल प्रिंसिपल था इसमें था लीगल प्रिंसिपल, इट इज लीगल प्रिंसिपल 4, सॉरी लीगल प्रिंसिपल 3। लीगल प्रिंसिपल 3 में बता रखा है हिंदूज में कौन कौन आएंगे, लिंगायत, ब्रह्मोस, आर्य समाजिस्ट, बुद्धिस्ट, जैन, सिख सब आएंगे। ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो है बात की गई है सिख की, तो सिख इज कंसिडर्ड एज अ हिंदू फॉर द पर्पज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो इसमें आंसर क्या सा चूज करना है, वुड द कोर्ट लाइकली रिकॉग्नाइज एज मैरिज विद जेड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो आंसर विल बी नो, यस यस हम काट देते हैं। ऑप्शन सी सेज नो, द हिंदू मैरिज एक्ट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स पॉलीगैमी एंड अदर सच टाइप्स ऑफ रिलेशंस, देयरफॉर द कोर्ट इज अनलाइकली टू रिकॉग्नाइज द एज मैरिज विद जेड अंडर द एक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाई आई शुड नॉट चूज ऑप्शन डी? ऑप्शन डी कहता है नो अनलेस द मैन बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक हिंदू सेक्ट दैट प्रैक्टिसेस पॉलीगैमी। अब ये जो है दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज। अब इसमें पैसेज में कहीं पे भी नहीं बता रखा है कि अगर आप स्पेसिफिक सेक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको पॉलीगैमी अलाउ कर दी जाएगी, ऐसा कहीं पे नहीं है। प्लस पॉलीगैमी इन ऑल फॉर्म इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सो आई विल नॉट बी चूजिंग ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ कपल वन ऑफ whom is Parsi and the other is Christian wishes to marry without adhering to any specific religious customs or rituals. They inquire whether they can solemnize their marriage under Special Marriage Act 1954. Would the couple be eligible to solemnize their marriage under the Special Marriage Act 1954? अब ये भी साफ साफ मैंने लीगल प्रिंसिपल आइडेंटिफाई किया तो उसी में से लीगल प्रिंसिपल कौन सा है, इट इज लीगल प्रिंसिपल 5, ये वाला LP5। तो लीगल प्रिंसिपल डायरेक्ट 5 मुझे अप्लाई करना है। स्पेशल मैरिज एक्ट के लीगल प्रिंसिपल 5 क्या कहता है
कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी जो है इंटर रिलीजियस, इंटर कास्ट, इंटर रेस शादी कर सकता है। अगर उसको शादी करनी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाए। तो इसमें एक पार्टी है पारसी, एक पार्टी है क्रिश्चियन, मतलब दोनों की रिलीजन अलग है, मतलब इंटर रिलीजियस मैरिज है, मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट लगेगा, मतलब लीगल प्रिंसिपल 5 लगेगा। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि वुड द कपल बी एलिजिबल टू सोलमनाइज देयर मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। तो आंसर होगा यस, नो काट देते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है यस द स्पेशल मैरिज एक्ट अलाउज एनी मैन एंड वुमेन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजियस बैकग्राउंड टू एक्वायर द स्टेटस ऑफ बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, देयरफॉर द कपल वुड बी एलिजिबल टू सोलमनाइज देयर मैरिज अंडर दिस एक्ट। दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। अब मैं ऑप्शन सी में भी यस दे रखा, लेकिन ऑप्शन सी क्यों चूज नहीं करूंगा? यस इफ दे ऑब्टेन द स्पेशल परमिशन फॉर गवर्नमेंट। अब पैसेज में कहीं पे भी नहीं बता रखा है कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर रहे हो तो आपको जो है गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन चाहिए। दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज, दैट्स व्हाई आई विल नॉट बी चूजिंग ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A couple after being in committed relationship for several years decides to register their marriage under the Hindu Marriage Act without actually solemnize the marriage ceremony। जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी हम पैसे पूरा जिस पे पढ़ रहे हैं वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि यू हैव टू फॉलो द रिलीजियस सेरेमनीज, ओनली देन योर मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड मैरिज। These have been living for several years. They have a committed relationship for several years, but they have performed their marriage without solemnizing the मैरिज सेरेमनी एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। मतलब सप्तपदी और ये सब चीज़ें जो है, जो रिलीजियस सेरेमनीज, इंपॉर्टेंट सेरेमनीज होती है, वो इन्होंने फॉलो नहीं किए। जब इन्होंने फॉलो नहीं किए तो उनकी शादी वैलिड होगी ही नहीं। ठीक है, लेटर दे फेस अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ मैरिज, वुड द रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर मैरिज अलोन कन्फर लेजिटिमेसी टू देयर मैरिटल स्टेटस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है, इसके फैक्ट्स एग्जैक्टली एप्लीकेबल हैं इस पैसेज में। जो पायलट्स का केस दे रखा था, इस क्वेश्चन के फैक्ट्स उससे एग्जैक्टली मिलते जुलते हैं। उन्होंने भी जो है मैरिज सर्टिफिकेट ले रखा था, लेकिन उन्होंने रिलीजियस सेरेमनीज को फॉलो नहीं किया था। तो जैसे कोर्ट ने रिलीजियस सेरेमनीज को फॉलो नहीं करने पे उनकी शादी को इनवैलिड बताया, भले ही उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट था। सेम विल बी द आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते हैं। वुड द रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर मैरिज अलोन, सिर्फ रजिस्टर करने से ही क्या उनकी मैरिटल स्टेटस वैलिड हो जाएगी कि नहीं होगी? तो आंसर विल बी नो, यस काट देते हैं। ऑप्शन बी सेज नो मैरिज रजिस्ट्रेशन इज अलोन डज नॉट कन्फर लेजिटिमेसी टू द मैरिटल स्टेटस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट if the marriage ceremony was not solemnized as in accordance with section 7 of the act। तो this is the correct answer। ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन डी क्यों चूज नहीं करूं? नो अनलेस द कपल प्रोवाइड्स एडिशनल एविडेंस ऑफ देयर मैरिटल रिलेशन। अब मान लो कि वो एडिशनल एविडेंस दे भी देते हैं कि हम लोगों को जो है बाकी लोग ऐसे ट्रीट करते थे जैसे हम हिंदू, जैसे हम जो है क्या है, हम लोग जो है हस्बैंड वाइफ है, या फिर जो है वो कपल कहते हैं कि हम लोगों की एक बेटा या बेटी भी है। तो अगर वो एडिशनल एविडेंस भी दे देते हैं, लेकिन इस पैसेज के हिसाब से एक वैलिड हिंदू मैरिज कब मानी जाएगी? जब आपने सेरेमनीज फॉलो की। तो जो अब आपने वही फॉलो नहीं किए तो आप कितने भी एविडेंस दो, आपकी मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। ओके, सो दैट्स व्हाई आई विल नॉट बी चूजिंग ऑप्शन डी एंड आई विल बी चूजिंग ऑप्शन बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, अ कपल after a traditional Hindu marriage ceremony in which Saptapadi and all other ceremonies were carried out fails to register their marriage under the Hindu Marriage Act due to administrative oversight। कपल ने शादी की है, सब सेरेमनीज को फॉलो किए, लेकिन क्या नहीं किया? रजिस्टर नहीं किया। तो अभी हमने देखा पैसेज में जो फैक्ट्स थे वो इसके उल्टे थे। उन्होंने जो है क्या किया था कि मैरिज को रजिस्टर कर लिया था, लेकिन सेरेमनीज परफॉर्म नहीं की थी। इस क्वेश्चन में इन्होंने जो है क्या किया है, इन्होंने सेरेमनीज परफॉर्म किए लेकिन रजिस्टर नहीं किया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पैसेज के हिसाब से कि आप सेरेमनीज करो। आपने सेरेमनीज करी है तो आपकी मैरिज वैलिड मानी जाएगी। दे लेटर सेपरेट एंड वन ऑफ द पार्टीज चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ देयर मैरिज सेइंग दैट देयर मैरिज वाज नेवर वैलिड सिंस इट वाज नेवर रजिस्टर्ड। वो चैलेंज किस ग्राउंड पे कर रहे हैं कि कभी रजिस्टर ही नहीं हुई, तो हमें उसी पे रिफ्यूट करना उसको। वुड द कोर्ट लाइकली अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो पूछा है कि कोर्ट क्या ये कह सकती है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, भले ही आपने सेरेमनीज फॉलो की होगी लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है वैलिड मैरिज का, तो आपकी शादी वैलिड नहीं होगी? तो ऐसा जो है पैराग्राफ में कहीं नहीं देखा। पैराग्राफ नहीं देखा है, जरूरी क्या चीज़ है? सेरेमनीज फॉलो करना। तो आंसर विल बी यस। Yes, the court would likely uphold the validity of marriage because it was carried out by fulfilling the valid rituals and ceremonies as per the Hindu Marriage Act 1958. The non-registration of marriage does not in itself make the marriage invalid। जो फैक्ट्स क्वेश्चन में, जो फैक्ट्स इस पैराग्राफ में दे रखे हैं उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब नो तो आंसर नहीं होगा, नो काट देते हैं। सी क्यों नहीं चूज करेंगे हम? सी कह रहा है यस इफ द कपल कैन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ दिस सेरेमोनियल मैरिज। अब ये क्वेश्चन जो है कहीं को लग सकता है कि सी भी हो सकता है। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन जो पूछा है
हमने एक बार पैसेज पढ़ लिया, पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पढ़ना भी हमें बहुत ज़रूरी है। जिस ग्राउंड पे आपको सामने वाला चैलेंज कर रहा है, द ग्राउंड ऑन विच द अदर पार्टी, द ऑपोजिट पार्टी इज चैलेंजिंग यू, यू हैव टू रिफ्यूट दैट पर्टिकुलर पार्टी ऑन द सेम ग्राउंड। ठीक है, तो पार्टी जो है किस ग्राउंड पे चैलेंज कर रही है कि उनकी रजिस्टर्ड नहीं थी, उनकी रजिस्टर्ड नहीं थी, मतलब वो चैलेंज ये नहीं कर रही कि सेरेमनीज नहीं थी, सेरेमनीज पे तो एडमिट कर रही है, चैलेंज किस पे कर रही है कि रजिस्टर्ड नहीं थी। तो हमें रजिस्टर्ड पे भी आंसर करना है, हमें रजिस्टर पे ही आंसर करना है। दैट्स वाई ऑप्शन सी विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेरेमनीज पे तो सामने वाली पार्टी भी डिस्प्यूट नहीं करी, वो भी कह रही है कि सेरेमनीज तो है, लेकिन इनकी शादी वैलिड क्यों नहीं, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है। तो जिस ग्राउंड पे हमें चैलेंज ही नहीं किया गया है उस पर हम रिफ्यूट ही नहीं करेंगे। दैट्स वाई वी विल नॉट चूज ऑप्शन सी। ओके, सो दिस वॉज अ पैसेज डीलिंग विथ ceremonies in Hindu Marriage Act, under ceremonies that have to be followed for a valid Hindu marriage under the Hindu Marriage Act 1955. So this was a decision given on 19th April 2024. So this is a very important, or you can say very important case law, very important decision. So I hope you must have understood as to how you can find out a legal principle in a passage. You don't have to mug up, or you don't have to read the whole passage word by word. You have to just identify, or you don't need to mug up the facts that have been given. You have to just identify the legal principles. In any legal passage, at most there will be 5 to 8 legal principles. So you need to understand, or you need to identify only those legal principles, and once you identify the legal principles, your 90% job is done. Now you just need to read the questions that have been given properly, and you need not get confused between yes yes and no no, because once you identify the legal principles, your 90% job is done. उसके बाद जो जितने भी क्वेश्चंस है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक्स कर सकते हो। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है कि किस ग्राउंड पे आपको चैलेंज किया गया है, जिस ग्राउंड पे आपको चैलेंज किया गया है आप उसी ग्राउंड पे उसको रिफ्यूट करोगे। ओके, सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, और आई होप दैट वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट इन अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।